वेदेशः तथा ध्रुवः आनन्दवन विद्यार्थिनः तत्र वेदघोषं कुर्वन्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रथं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्नामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराविर्मायेधि वेदस्य माणिस्थश्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्धादामृतं वादिष्यामि सत्यं वादिष्यामि तन्मामावतु तद्वक्तारमवत्ववातु मा अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। यादवनीबा यदुकुलानन्दन माधव मधुसूदनने बारो। यादवनीबा यदुकुलानन्दन माधव मधुसूदनने बारो। ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಧುರಲಿ ಮಾಡುಹಿದ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಧುರಲಿ ಮಾಡುಹಿದ ಯಶೋದ ಕಂದ ನೀ ಬಾರೋ ಯಶೋದ ಕಂದ ನೀ ಬಾರೋ ಯಾದವ ನೀ ಬಾ ಯದುಕುಲಾನಂದನ ಮಾಧವ ಮಧುಸೂದನನೆ ಬಾರೋ. ಶಂಖ ಚಕ್ರವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಬಿಂಕದ ಗೋಗಳ ನೀ ಕಾಯೋ. ಶಂಖ ಚಕ್ರವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಬಿಂಕದ ಗೋಗಳ ನೀ ಕಾಯೋ. ಅಕಳಂಕ ಚರಿತನೆ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಅಕಳಂಕ ಚರಿತನೆ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಬೇಕೆಂಬ ಭಕುತರಿ ಗೋಲಿಬಾರೋ ಬೇಕೆಂಬ ಭಕುತರಿ ಗೋಲಿಬಾರೋ. ಯಾದವ ನೀ ಬಾ ಯದುಕುಲಾನಂದನ ಮಾಧವ ಮಧುಸೂದನನೆ ಬಾರೋ. ಕಣಕಾಲಂದುಗೆ ಘಿಲು ಘಿಲು ಎನ್ನುತ್ತಲಿ ಝಣ ಝಣ ವೇಣು ನಾದದಲ್ಲಿ. ಕಣಕಾಲಂದುಗೆ ಘಿಲು ಘಿಲು ಎನ್ನುತ್ತಲಿ ಝಣ ಝಣ ವೇಣು ನಾದದಲ್ಲಿ. ಚಿಣಿಕೋಲು ಚೆಂಡು ಬುಗುರೆಯ ನಾಡುತ್ತಾ ಚಿಣಿಕೋಲು ಚೆಂಡು ಬುಗುರೆಯ ನಾಡುತ್ತಾ
ಸಣ್ಣವರೊಡಗೂಡಿ ನೀ ಬಾರೋ ಸಣ್ಣವರೊಡಗೂಡಿ ನೀ ಬಾರೋ ಯಾದವ ನೀ ಬಾ ಯದುಕುಲನಂದನ ಮಾಧವ ಮಧುಸೂದನನೇ ಬಾರೋ ಖಗವಾಹನನೇ ಬಗೆ ಬಗೆ ರೂಪನೆ ನಗೆ ಮೊಗದರಸನೆ ನೀ ಬಾರೋ ಖಗವಾಹನನೇ ಬಗೆ ಬಗೆ ರೂಪನೆ ನಗೆ ಮೊಗದರಸನೆ ನೀ ಬಾರೋ ಜಗದೊಳು ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆಯ ಪೊಗಳುವೆ ಜಗದೊಳು ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆಯ ಪೊಗಳುವೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀ ಬಾರೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀ ಬಾರೋ ಯಾದವ ನೀ ಬಾ ಯದುಕುಲನಂದನ ಮಾಧವ ಮಧುಸೂದನನೇ ಬಾರೋ ಯಾದವ ನೀ ಬಾ ಯದುಕುಲನಂದನ ಮಾಧವ ಮಧುಸೂದನನೇ ಬಾರೋ ಮಾಧವ ಮಧುಸೂದನನೇ ಬಾರೋ ಧನ್ಯವಾದ आदौ गवां पालकस्य परमात्मनः श्रीकृष्णस्य तथा श्रीकृष्णाराधकानां परमपूज्यानां श्रीविश्वेशतीर्थश्रीचरणानां सन्निधानयुक्ते अस्मिन् पूर्णप्रमतिगुरुकुले आनन्दवनस्थे सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। प्रायः द्वित्रैः शताब्दैः भारतीयानां मनसि अथवा मनः एव द्विधा जातः इति प्रतीतिः स्फुटं जायते। यतः साहित्य संगीत कला अध्यात्म इत्यादि क्षेत्रेषु एव भारतीयविद्यायाः भारतीयज्ञानस्य आवश्यकता, किन्तु जीवननिर्वाहार्थं वृत्ति आजीविकार्थं तु आधुनिकविद्यायाः आवश्यकता अस्ति इति समाजे प्रबलतमः अभिप्रायः वर्तते। तस्य विमर्शार्थम् अयं सत्रः। अत्र बहवः धीराः सन्ति ये भारतीयज्ञानविषये तदनुसारेणैव जीवननिर्वहणेनापि प्रवृत्तिवृत्त्योः एकत्र समावेशः कर्तुं शक्यते इति स्फुटतरं मत्वा तस्मिन्नेव प्रवर्तमानाः सन्ति। अयम् अत्र मुख्यविषयः वर्तते। First of all, I would like to welcome all of you to this Pavitra Kshetra with the presence of Paramapujya Shri Vishweshatirtha Swamiji's Sannidhana here. The idea of this gathering is primarily to understand, analyze and provide alternatives to the dominant notion in the contemporary society that there are necessarily two kind of the phrase that we typically keep using, the split personality in the Indian mindset now, that one for Sahitya, Sangeeta, Kala, Adhyatma kind of a pursuit, which is more of a pravritti for all of us, for which we are happy to have a separate private space within the Indic knowledge systems, whereas for the livelihood, for economy, for actual living, we require something from the Western modern world, is the dominant view. Many of you here have been questioning that necessary dichotomy and exploring the possibilities, and some of you have been actually providing the possibilities of how the Bharatiya Sanatana Paramparas can actually be Arthodpadakas also. That it is possible and it is in fact important to make that a possibility for those who are seeking that alternative,
that Arthakari Shiksha is not a dream but is necessary and is possible. So, given that intent and the background, the way this session, the morning session overall is structured is that we will have a keynote address by Indutai first, and then we have about 8 institutional heads and representatives here. So they will speak about their institutional work and the focus within 2-3 minutes. In another 2-3 minutes, how the possibility of being integrated with the economy in general, but that which has an Indian base at the heart, is being taught in the futures of the students they are dealing with. So in their own institutions, their students, whether they are in the Gurukula system or for higher education research kind of activities. So how their future and their capabilities are being developed to make it economically sustainable, and that it is not an impossible task to do. So that presentation by everyone, that is the institution and this idea clubbed together within 7 minutes per person, so that we'll have about 1 hour or 1 hour 15 minutes of that session, and then we'll have a break, and then we'll open it up for discussions with a focus on how do we take this forward with 2 primary goals. One, if it is mostly in the Gurukula system, how do we bridge this Gurukula learning to employability or livelihood with a higher education space in the middle. So what are the plans and possibilities that we need to envision for the higher education space coming from the Gurukula system? And with that, how does that integrate or redefine the contemporary economic trends? So that's the overall goal. So with that, I would request Indutai to give her keynote address first. आज की इस गोष्ठी में सहभागी होने के लिए पधारे सभी विद्वज्जनों को नमस्कार। आज के विषय के संधान में जिन मुद्दों को लेकर हमें चर्चा करनी चाहिए, उन मुद्दों को मैं संक्षेप में आपके समक्ष निवेदन करने के लिए उपस्थित हूँ। विषय आज अर्थार्जन, अर्थकरी शिक्षा, अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ, इसी को केंद्र में रखकर शिक्षा की बात करने का है। श्रेष्ठ समाज के 2 आयाम होते हैं। एक होती है संस्कृति, दूसरी होती है समृद्धि। समृद्धि के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती, और संस्कृति के बिना समृद्धि आसुरी होती है, जो पहले अन्य लोगों का नाश करने पर तुली होती है और बाद में स्वयं को भी नष्ट करती है। इसलिए दोनों आयाम बहुत आवश्यक हैं, अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं, परंतु दोनों का संबंध अनिवार्य है। संस्कृति और समृद्धि दोनों ही जहाँ साथ साथ चलते हैं, वहाँ समस्त प्रजा को, समस्त राष्ट्र को अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है। भारत का चिंतन इन दोनों पक्षों को एक साथ देखता आया है और परस्पर दोनों पक्ष लाभान्वित होते आए हैं। इस प्रकार की रचना हमने की है। आज हम देख ही रहे हैं कि दोनों पक्षों की चाह तो हम सबको है। हम सुसंस्कृत बनना भी चाहते हैं, संस्कृति की रक्षा करना भी चाहते हैं, संस्कृति को उन्नत बनाना भी चाहते हैं और समृद्धि भी चाहते हैं।
भौतिक वैभव भी चाहते हैं। दोनों ही चाहना गलत तो नहीं है, परंतु हम रचना ऐसी करते हैं, व्यवस्था आज ऐसी बनी है कि दोनों साथ साथ में नहीं रह सकते हैं, और कभी कभी तो या अधिकांश दोनों एक दूसरे के विपरीत व्यवहार करते दिखाई देते हैं। और सबकी धारणा ये बनती है, मानस यह बनता है कि आपको संस्कृति, धर्म, अध्यात्म इस रास्ते पर आगे बढ़ना है तो आपको गरीबी को अंगीकार करना होगा, आपको वैभव की कामना नहीं करना है, आपको उसका तो समृद्ध बनने की इच्छा नहीं करना है। और यदि समृद्धि प्राप्त करनी है तो ये धर्म, संस्कृति आदि सारी बातें छोड़ दो। ऐसी एक प्रचलित मान्यता भी है और व्यवस्था भी ऐसी है। हमारा पहला काम जो है, जिस पर हमें विचार करना है, वह समृद्धि और संस्कृति दोनों ही एक साथ परस्पर पूरक, परस्पर लाभकारी और दोनों तरफ से हमको आगे ले जाने वाले कैसे हो। इतिहास कहता है कि ये दोनों ही बातें हमेशा संभव तो बनी है, ऐसी व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई है, ये इतिहास तो प्रमाणित करता है। आज उसको हमने पुनः प्रमाणित करके ऐसी व्यवस्था करनी है। जब भी हम कोई भी चिंतन करते हैं तो आज के समय में ये दूसरा मुद्दा है, भारतीय दृष्टि, भारतीय चिंतन, भारतीय जीवन व्यवस्था, भारतीय जीवन शैली, भारतीय जीवन मूल्य, इनको मानक के रूप में, संदर्भ के रूप में स्वीकार करके ही प्रस्थान करना होगा। ये मूल में है। इसका कारण क्या है ये भी हमें सोचना चाहिए। आजकल सब कहते हैं कि इन दोनों हमको वैश्विक स्तर पर विचार करना चाहिए, भारतीय भारतीय करना ये तो संकुचित होता है। ऐसा नहीं है, सुनाई भले ऐसा देता हो, परंतु वास्तव में क्या है? वास्तव में विश्व में एकमात्र हमारा देश है जो हमेशा वैश्विक संदर्भ में ही विचार करता है, वैश्विक संदर्भ में ही अपने व्यवहार के मानक स्थापित करता है, वैश्विक संदर्भ में ही व्यवस्थाएं बनाता है। सर्वेषाम अविरोधेन, इस दायरे में संपूर्ण विश्व भूत मात्र आता है, ये भारतीय ऐसे सोचता है। इसलिए हमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं कि हम तो भारत के बारे में विचार करते हैं, वैश्विक स्तर पर जाकर विचार नहीं करते हैं, अथवा हमको वैश्विक स्तर पर भी विचार करना है, ये भी नहीं है। भारत हमेशा विचार करता है वो वैश्विक स्तर पर ही करता है। हमारी बहुत प्रचलित प्रार्थना यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमने कभी नहीं कहा भारतीयाः भवन्तु सुखिनः, हमने कभी नहीं कहा हिंदवः भवन्तु सुखिनः, हमने कभी नहीं कहा मानवाः भवन्तु सुखिनः। भूत मात्र संपूर्ण विश्व सुखी हो, ऐसा हमारा व्यवहार हो, ऐसी हमारी व्यवस्थाएं बने, ऐसी जीवन शैली विकसित हो, यही हमारी कामना रही है। इसलिए हमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, उल्टे हमें दृढ़ता पूर्वक ये मानना चाहिए कि विश्व को वर्तमान संकटों से यदि बचना है तो भारत की ओर देखना, भारत को भी यह अपने आप में विश्वास दिलाना है, अपने आप को विश्वास दिलाना है कि विश्व के संकट यदि दूर करने हैं तो हमें दायित्व लेना चाहिए। ऐसा दायित्व लेने के लिए हमें भारत बनना होगा। इसलिए हमारी सबकी त्रिसूत्री ये होनी चाहिए, भारत को जानो, भारत को मानो, भारतीय बनो। ये दूसरा मुद्दा है। हमारे सारे मानक, हमारी सारी पद्धति, हमारी सारी प्रक्रिया ज्ञान क्षेत्र में भी भारतीय बने। ये इसलिए पुनः पुनः याद करना आवश्यक है, क्योंकि आज ऐसा कहा जाता है, अरे सब लोगों को पता चले इस प्रकार से हमारे ज्ञान को प्रस्तुत करो।
आज के मानकों में भी हमारे ज्ञान को प्रमाणित करो, ये कभी भी होने वाला नहीं है, उल्टा होना चाहिए। भारत ने अपने मानक पहले स्थापित करना चाहिए, भारत ने अपनी प्रमाण पद्धति पहले स्थापित करनी चाहिए और उन मानकों पर, उन प्रमाणों के आधार पर विश्व में अभी जो कुछ भी चल रहा है उसका मापन करना चाहिए और उसमें सुधार भी करना चाहिए। ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति का आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति के हमारे मानक क्या हैं, हमारी पद्धति क्या है, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। ये दूसरा मुद्दा हुआ। अर्थकरी शिक्षा, जैसे आज श्रीनिधि आचार्य जी ने कहा कि हम तो अर्थार्जन के लिए, अर्थ प्रवृत्ति के लिए आज की जो पाश्चात्य पद्धति स्थापित हो गई है उसके ही आश्रय में जाते हैं, क्योंकि हमारी जो गुरुकुल पद्धति है वो एक प्रकार से कंडीशनड हो गई है, एक प्रकार से हमारे मन में स्थापित हो गई है कि गुरुकुलों में जो जो भी पढ़ाया जाता है वह अध्यात्म, धर्म, संस्कृति और फिर उसको प्रस्तुत करने वाले वेद, उपनिषद, अन्य शास्त्र, रामायण, महाभारत, अन्य पुराण आदि का अध्ययन तो गुरुकुलों में होगा। गुरुकुलों में सज्जन व्यक्ति तो निर्माण होगा, वेदज्ञ व्यक्ति तो निर्माण होगा, परंतु हमारे इस सारे ज्ञान में आज की व्यवस्था में अर्थार्जन करने की शक्ति नहीं है। यदि शक्ति नहीं है तो हजारों वर्षों से हमारा देश कैसे चलता आया है। हमारे उपवेद तो सारे सर्व प्रकार के ज्ञान विज्ञान के लिए मूल आधारभूत शास्त्र प्रस्तुत करता है और भारत ने कभी भी विद्वानों को, पंडितों को, शास्त्रज्ञों को गरीब रहने का उपदेश नहीं दिया है। हाँ, स्वेच्छा से अकिंचन होने वाले, स्वेच्छा से सादगी अपनाने वाले, स्वेच्छा से उसका मोह न रखने वाले, उनसे, उनके मोह से मुक्त हो जाने वाले तो विद्वान लोग रहे हैं, परंतु वह तो उन्होंने स्वयं स्वीकार की हुई जीवन पद्धति है, वे बाध्य नहीं हुए हैं, विवश नहीं हुए हैं, उनकी विद्या अर्थार्जन करने के काम में नहीं आती, इसका स्वीकार उन्होंने नहीं किया है। तो फिर आज ऐसी धारणा क्यों बन गई, इसके ऊपर हमें विचार करना है। केवल पूर्ण जीवन की रचना पुरुषार्थ चतुष्टय के आधार पर होती है, उसमें अपवर्ग की हम बात न करें व्यवहार जीवन में, क्योंकि व्यवहार जीवन में त्रिवर्ग पुरुषार्थ को यदि ठीक कर लिया तो मोक्ष तो परिणाम के रूप में प्राप्त होने ही वाला है। त्रिवर्ग पुरुषार्थ को समायोजित करना और उसको मोक्ष के अनुकूल बनाना, यही तो हमारा ज्ञान क्षेत्र का पुरुषार्थ है। तो उसमें केवल धर्म की बात नहीं हो, केवल अर्थ की बात भी नहीं होगी, हमें पुनर्रचना करनी है, वह अभ्युदय की दिशा में भी करनी है। निश्रेयस के बारे में मुझे यहाँ उपस्थित लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब वो कर ही रहे हैं, परंतु अभ्युदय के बारे में, भौतिक संसाधन जुटाने के बारे में, अर्थार्जन के बारे में हमें पुनः एक बार अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की द्विधा जीवन व्यवस्था तो नहीं चल सकती। कुछ समय के लिए, कुछ अंश में, कुछ एक अवसर पर हम एकदम धार्मिक हैं, एकदम वेद प्रामाण्य मानने वाले हैं, एकदम वेद का और ज्ञान क्षेत्र का सम्मान करने वाले हैं, और किसी दूसरे हिस्से में, जीवन किसी दूसरे हिस्से में, दूसरे अवसर पर, दूसरे समय पर उसको भूलकर पाश्चात्य व्यवस्था के अंदर जाने वाले हैं। ऐसी द्विधा प्रवृत्ति कभी भी किसी के लिए वांछनीय नहीं है, न वह विकास का रास्ता है। तो फिर हमको तीनों पुरुषार्थों को एक साथ जोड़ना होगा और उसमें
हमें हमें मानक कहाँ दूर जाना है देखने के लिए। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, ये तो हमको बताया ही गया है कि काम पुरुषार्थ है, काम है या नहीं है, परंतु वह धर्म के अविरोधी होना चाहिए। आज इसको भी हमें विचार में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा शत्रु जिसने अंतर्बाह्य हमको आक्रांत करके रखा है, वह है वोकिज्म। सीधा सीधा वह स्वैराचार है। कोई निर्बंध नहीं, कोई अनुशासन नहीं, उसको ही स्वतंत्रता कहना। स्व के तंत्र के अनुसार जीवन जीना वह स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता परमात्मा का लक्षण बताया गया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः इति स्वतंत्रः। स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं लेते हैं हम। और स्वैराचार और मानव क्या है, मन में जो भी आता है वैसा करने की सहूलियत होना ही सुविधा है, वही स्वतंत्रता है। वो उसके लिए संपन्नता होना वही सामर्थ्य है। उसके कारण से जो समाज, संस्कृति, धर्म आदि की हानि हो रही है, उसके माध्यम एक एक व्यक्ति बन रहे हैं समाज के। ये क्या है, काम पुरुषार्थ अनवस्थ हो गया है। काम पुरुषार्थ नहीं रहा, काम प्रवृत्ति हमको गर्त में ले जा रही है। तो इसको तो ठीक करना होगा। क्यों, इसका आज का विषय तो अर्थार्जन का है, लेकिन काम पुरुषार्थ को याद क्यों किया? काम से प्रेरित होकर तो हमारी अर्थ प्रवृत्ति बनती है, कामना पूर्ति करनी है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है, इसलिए अर्थार्जन करना है। तो इसलिए पहले संयमित उपभोग का सूत्र अपना कर काम पुरुषार्थ को ठीक करो और उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ की ओर ध्यान दो। भारत में अर्थशास्त्र हमेशा इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस रहा है, विपुलता का अर्थशास्त्र। चाहिए उससे अधिक होना है, चाहिए इससे अधिक है तो फिर तृष्णा भी नहीं रहेगी, तो फिर चोरी डकैती नहीं रहेगी, संग्रहखोरी नहीं रहेगी, अनेक अवांछनीय ऐसे व्यापार नहीं रहेंगे। तो पहले तो इस अर्थशास्त्र को समझना है कि इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस आता कैसे है। 3-4 छोटे छोटे परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक, हमारी प्राकृतिक संपदा। प्रकृति ने भारत के ऊपर इतनी कृपा दी है, उर्वरा भूमि, उत्तम पोषक जल, समशीतोष्ण तापमान और शीतल और ऐसी सुखदायी ऐसी वायु और ऐसा निर्भर आकाश, इतनी ऋतुएं, ये सारे जो सारी संपत्ति, भूमि के अंदर की खनिज संपदा, रत्नाकर ही हमारे समुद्र का नाम है। तो रत्नों की विपुलता, मैंने समृद्धि की विपुलता तो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। दूसरा है मनुष्य के हाथों में जो कौशल है और बुद्धि में जो निर्माण क्षमता है और फिर हृदय में जो इनका सदुपयोग ही करना चाहिए, ऐसी भलाई की वृत्ति है। इस कारण से हमारा विपुलता का अर्थशास्त्र और विपुलता की अर्थव्यवस्था बनती है। इसको पुनः स्थापित करना ये शिक्षा के माध्यम से होगा। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ और अर्थशास्त्र की शिक्षा हमारा प्रस्थान बिंदु, प्रारंभ बिंदु होगा। अर्थ संपादन तो बहुत बाद की बात है, परंतु पहले तो इन आधारों को ठीक करना होगा। तो हमारी चर्चा में ये विषय भी अवश्य आना चाहिए कि ये संपत्ति कैसे बढ़ती है, समृद्धि के स्रोत, मूल स्रोत क्या है। आज हम देखते हैं कि इसकी चर्चा में ये तो आएगा ही, प्राकृतिक संपदा का शोषण करने के कारण से, दुरुपयोग करने के कारण से पर्यावरण का प्रदूषण, उपभोक्ता के स्वास्थ्य की हानि,
तो चारों ओर हो ही रही है, और इसमें अर्थार्जन की प्रवृत्ति ही इसके कारण रूप बनी है। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि ऐसा ही होगा, प्रदूषण भी होगा और स्वास्थ्य की हानि भी होगी, और इन दोनों बातों को लेकर फिर ऐसे ऐसे अर्थार्जन के मार्ग अपनाए जाते हैं कि वो इनको साधन बनाते हैं अर्थार्जन करने के लिए। और फिर हमारी बुद्धि, रोजगार के कितने अवसर हम निर्माण कर रहे हैं, तो फिर ये पहले ठीक करना होगा कि कैसे होगा। दूसरा, काम नहीं करना सिखाना, ये हमारी शिक्षा का एक आधारभूत सूत्र बचपन से हो गया है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो फिर इसका अर्थ होता है काम नहीं करो, काम नहीं करो, काम नहीं करो, और इसका विकास होता है काम करने वाला हल्का है, हाथ से जो काम करता है, औजारों का उपयोग करके जो काम करता है, वो तो नीचा है, कनिष्ठ है। काम करवाने वाला श्रेष्ठ है, जिसको काम नहीं आता परंतु ये न के प्रकार वो मैनेज करता है, वो स्वामित्व प्राप्त करता है। ये भी तो अनवस्था हो गई है, ये व्यवस्था तो बदलनी ही पड़ेगी। इसलिए श्रम प्रतिष्ठा, काम करने वाले की प्रतिष्ठा, ये भी अर्थार्जन के लिए, धर्मानुकूल अर्थशास्त्र के लिए ये भी एक दूसरा सूत्र है। काम करो, काम का स्वामित्व पहले सुनिश्चित करो। हमारी व्यवस्था में आज काम करने वाला मजदूर है, ये तो मनुष्य की अत्यंत अप्रतिष्ठा हो गई। श्रम की अप्रतिष्ठा हुई, काम की भी अप्रतिष्ठा हुई, इसको ठीक करना ये भी आवश्यक होगा। ऐसा सूत्र जब अपनाएंगे तब आज का जो उत्पादन का क्षेत्र है उसको ठीक करना होगा। केंद्रित, हम बहुत बड़े यंत्रों से होने वाला, बिजली और अन्य ऐसी ऊर्जा से चलने वाले यंत्रों से एक स्थान पर विपुल मात्रा में होने वाला उत्पादन, ये देश का बहुत बड़ा आर्थिक अनिष्ट है। इसको दूर किए बिना इसके स्थान पर विकेंद्रित, काम करने वालों को अपने काम का स्वामी बनाने वाला मजदूर और नौकर, इसकी व्यवस्था को बदल देने वाला ऐसा अर्थ पुरुषार्थ या ऐसी अर्थव्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था हमें चाहिए। उत्पादन के लिए निर्बंध होना, पर्यावरण का प्रदूषण होता है, ऐसे किसी भी बात का उत्पादन निषिद्ध होना चाहिए। उपभोक्ता के स्वास्थ्य की हानि करने वाला कोई भी उत्पादन निषिद्ध होना चाहिए। और तीसरा, जो लगभग कभी स्मृति में नहीं आता या चर्चा में नहीं आता, ऐसा है देश की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा काम करने वाला हिस्सा होना चाहिए। काम नहीं करने वालों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए अधिकांश लोगों को, हो सकता है 70-75 लोग उत्पादन में जाने चाहिए, और उससे तीसरा चौथाई वाला भाग व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में जाना चाहिए। ये एक मुद्दा हुआ। वाणिज्य की जब बात आती है तब हमें क्या करना है, तो तब ये सोचना चाहिए कि उसमें उत्पादक और अनुत्पादक ऐसा कितना पैसा का हेरफेर होता है। एडवर्टाइजमेंट, स्टोरेज, बिचौलिए, परिवहन, ये सारे के सारे अनप्रोडक्टिव एलिमेंट्स है। अनप्रोडक्टिव एलिमेंट्स से जो समृद्धि निर्माण होती है वह आभासी समृद्धि होती है। आभासी समृद्धि समस्त प्रजा को, संपूर्ण देश को अंततोगत्वा दरिद्र बनाती है। इसलिए व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में हमें बहुत कुछ परिवर्तन का विचार करना होगा। इसका अर्थ कभी भी यह नहीं रहा कि हम विश्व भर में जो उत्तम वस्तुएं निर्माण होती हैं उनको उपभोग के लिए हमारे देश में नहीं लाएंगे।
या हमारे उत्पादन निर्यात के क्षेत्र में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। 17वीं शताब्दी में भारत का विश्व व्यापार 33% था, जाते थे, ऐसा नहीं। परंतु इसको कैसे ठीक करना, ये हमारा विषय होना चाहिए। अब शिक्षा की बात करें तो यही सारे हमारे शिक्षा के विषय होने चाहिए। तो हमारे छात्रों को आगे चलकर किस वृत्ति से अर्थार्जन करना है, इसकी निश्चित ही इन सभी संदर्भों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। मैंने सबसे पहला है, जब से काम करना शुरू करते काम करना सिखाओ। काम अच्छा लगना चाहिए, काम करने वाला रस आना चाहिए, रुचि आनी चाहिए, उसी में से क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, ये सारे गुण विकसित होते हैं, गति उसी से बढ़ती है। जन्म से ही जिसकी आजीविका सुनिश्चित हो गई है, व्यवसाय जिसको डीएनए में मिला है, वातावरण में से वह उत्पादन को या व्यवसाय को इम्बाइब करता है, ये तो विलक्षण बुद्धिमानी का लक्षण है। आज हमने इसको ध्वस्त कर दिया, हमारी बुद्धि को ही हमने मान्यता नहीं दी है और सब कुछ अनवस्थ कर देने वाली बुद्धि को हम मॉडर्निटी कहते हैं, आधुनिकता कहते हैं। जरा इस बात पर हमें तो छात्रों को अपनी वृत्ति तय करना है। कौन सी आयु में? 10 वर्ष की आयु में तय हो जाना चाहिए कि एक प्रत्येक छात्र की वृत्ति क्या होगी। 15 वर्ष की आयु तक उसके बेसिक्स, मूलभूत बातें पकड़ में आ जानी। 15 से 20 वर्ष में अप्रेंटिसशिप करके उद्योग करने वाला, अर्थार्जन में माहिर ऐसा हो जाना चाहिए। बाद में सेटल हो गया, बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और गृहस्थाश्रम में ऐसे घर की कन्या लाओ जो इस व्यवसाय में समरस हो सके। ये विवाह शास्त्र, कुटुंब शास्त्र भी हमारी परंपरा में तो रहा ही है। हाँ ठीक है, इसको सवर्ण सजाति विवाह इसको मानक बनाया और इसी को चैलेंज कर दिया हमने। माने वो हमको हमारा पोषण करने वाले वृक्ष की जड़ों को काटना, यही आज की प्रवृत्ति हो गई और फिर दूसरा ही वृक्ष कहीं पर उग गया और अब हमारे वृक्ष के ऐसे विस्मृति हो गई कि चाह तो है, कहीं कहीं स्मरण तो है, परंतु वैसे ही वृक्ष का पुनः विकास होना चाहिए और हमें नहीं, कुछ नहीं है वृक्ष तो हमें उस वृक्ष का बीज बोना चाहिए और उस वृक्ष को ही खाद पानी देकर सिंचित करके आगे बढ़ाना चाहिए और फिर दूसरे विश्व वृक्ष का विकल्प निर्माण कर देना चाहिए। तो वृत्ति तय करना और उसमें एक बात और है हमारे मूल्य के, इसमें हमारे यहाँ कौन सी बात क्रय विक्रय के लिए नहीं है, इसके तो बहुत अच्छे मानक हैं और इसमें ज्ञान क्षेत्र पहला आता है। विद्या, ज्ञान, ये कभी क्रय विक्रय का पदार्थ नहीं रही। अर्थ निरपेक्ष शिक्षा इसका सूत्र है। व्यवहार में निःशुल्क निर्वेतन शिक्षा, ये इसके आयाम हैं। और तीसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी शिक्षा संस्था का योगक्षेम कैसे चलेगा। निःशुल्क निर्वेतन तो ठीक है, परंतु गुरुकुल में छात्र रहते हैं, उनको अन्न वस्त्र निवास आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति तो होनी ही है। आचार्य गृहस्थ है, आचार्यों का योगक्षेम चलना ही चाहिए, गुरुकुल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये तो सब अर्थ से ही प्राप्त होने वाली बातें हैं। तो फिर एक गुरुकुल का योगक्षेम कैसे चलेगा यदि निःशुल्क और निर्वेतन शिक्षा की व्यवस्था की गई तो फिर ये जो सूत्र है, अर्थ निरपेक्ष शिक्षा, निःशुल्क और निर्वेतन शिक्षा और गुरुकुलों का, माने हम गुरुकुल ही कहेंगे, फिर वो कोई विद्यापीठ हो कोई भी हो, गुरुकुल एक संज्ञा है
गुरुकुल का योगक्षेम कैसे चलेगा? गुरुकुल के 3 कंपोनेंट्स अभी बताए, छात्र, आचार्य और गुरुकुल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब का योगक्षेम कैसे चलेगा? हम अनुदान की बात जानते हैं, सरकार अनुदान देती है, ये एक व्यवस्था होती है। दूसरा, कहीं न कहीं समाज की संस्थाएं भी अनुदान करती है, स्पॉन्सर्ड बाय, ऐसा भी होता है। ये सब कैसे होगा? हम कहते हैं समाज आधारित शिक्षा, समाज के द्वारा पोषित शिक्षा, सरकार के द्वारा नहीं। तो फिर ये कैसे होगा? अभी स्वायत्तता का मुद्दा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सारे इतने सीधे मामले तो नहीं है। स्वायत्त माने शासन निरपेक्ष भी है। शासन निरपेक्ष और अर्थ निरपेक्ष इसके मूल्य हैं। ये व्यवस्था ऐसे ही नहीं बनाई गई। गुरुकुल राजा और प्रजा, राज्य और समाज दोनों को ही कैसे व्यवस्थित चलना, इसका मार्गदर्शन देने वाली संस्था है, उसका नियमन करने वाली संस्था है, उसका आवश्यकता हुई तो नियंत्रण करने वाली संस्था है। जो उसके द्वारा पोषित होगी वो राज्य का नियंत्रण नहीं कर पाएगी, नियमन भी नहीं कर पाएगी। इसलिए शासन निरपेक्ष तो होना ही चाहिए। वैसे भी ज्ञान क्षेत्र ये शासन का क्षेत्र नहीं है, उद्योग का क्षेत्र नहीं है, वह तो इससे परे ही है, सबका मार्गदर्शन करने वाला। इसलिए स्वायत्त होना चाहिए। स्वायत्तता आज के जमाने में दान की, अनुदान की, दया की अपेक्षा किए बिना चलाया जाने चाहिए, नहीं तो स्वायत्तता नहीं रहेगी। तो फिर गुरुकुल का योगक्षेम चलाने का दायित्व किसका है? राज्य का नहीं। राज्य का आज भी उसने स्वीकार नहीं किया है। भले ही हम माने राजा महाराजा बहुत सहायता करते थे गुरुकुलों को, आज भी कर सकते हैं, परंतु करते तो नहीं हैं। अगर करते हैं तो वे शर्तें लगाते हैं, तो स्वायत्तता नहीं रहती, फिर नियमन नियंत्रण सब कुछ आ जाता है। तो फिर स्वायत्तता, राजा यदि दुष्ट है और उसने गुरुकुल को नष्ट करने का ही निर्धार किया और उसको सहायता देना बंद कर दिया, तो उसकी दया पर तो नहीं जीते थे, गुरुकुल अपना रास्ता कर लेते थे। तो ऐसा दायित्व कौन निभाएगा? गुरुकुल के कंपोनेंट्स कौन है? कौन गुरुकुल बनाता है? जैसे कुटुंब स्वायत्त होता है और अपना योगक्षेम चलाने की जिम्मेदारी स्वयं वहन करता है, वैसे गुरुकुल भी अपना योगक्षेम चलाने का दायित्व स्वयं निर्वहन करने लगे, तभी स्वायत्त रह सकता है। इसमें जिन जिन का सहयोग प्राप्त होगा वो करेंगे, परंतु आदर का स्थान, श्रेष्ठत्व का स्थान, धर्म के अनुकूल चलने का स्थान, ज्ञान के श्रेष्ठत्व का स्थान, ज्ञान की स्वतंत्रता की रक्षा करने का स्थान, उसके साथ समझौते नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि राजा ने भूमि प्रदान की तो नहीं लेंगे, या किसी श्रेष्ठी ने दान दिया तो मना करेंगे, ये नहीं है। परंतु वो श्रेष्ठी दान देगा, इसलिए हम कहीं न कहीं समझौता करें, ये ईमानदारी नहीं हुई, प्रामाणिकता नहीं हुई। तो इस रूप में अर्थनिरपेक्ष शिक्षा के साथ साथ हमें स्वायत्तता की चर्चा भी अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। दिस इज द भारतीय वे। भारतीय पद्धति से शिक्षा की और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति से लेकर राष्ट्र की परम वैभव की प्राप्ति करना, अभ्युदय निश्रेयस दोनों की प्राप्ति करना, वे अंततोगत्वा हमारा विषय होना चाहिए। मैं समाप्त करूंगी इस कथन से, जैसी शिक्षा वैसा व्यक्ति, जैसी शिक्षा वैसा समाज, जैसी शिक्षा वैसा देश, सूत्र को ध्यान में रखकर और अर्थार्जन या अर्थकरी शिक्षा को
केंद्रीभूत विषय रखकर, परंतु ये सारे संदर्भों को ध्यान में लेते हुए हम आज के दिन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इतना निवेदन करके मैं मेरी बात पूर्ण करती हूँ। नमस्कार। Namaskar and dhanyawad, Indutai. So, as we were discussing earlier, it's now nearing 9:30. Till 10:45 is what we have the time for this next round. Of course, Tai has already given the pointers for the potential topics for discussion with the focus on Arthakari Shiksha. There are a couple of new joinees, so just give 1 minute context. The larger question has been, as Sai was even technically formulating it even better, is how do we bring the Abhyudaya and Nishreyasa part together. The general understanding of going with Dharma, Samskriti, etc. for the Nishreyasa part, whereas for the Western world, for the Abhyudaya part, has created this split, and how do we think of recalibrating it is the primary question. For the next 1 hour, 15 minutes, it may be better, so I'll just give the names of the people who are in this first circle for the first round of discussions. It will be good if you introduce yourself and the institution, the work that you're doing within the first 2-3 minutes, and the next 4-5 minutes on two aspects. One, the expertise or the areas in which your institution or your students have greater foundations. The idea is that this can act as a potential collaboration possibilities when we discuss next. So when we come to know what are the specific areas in which each institution is working. And the second or the last is how is the Arthakaritva possibility is being explored or developed in your respective ecosystems. A warm welcome to Adinarayan ji, Walish ji, Shivkumar ji, Dattatreya ji, Tilak ji, Pankaj ji, Munit ji, Dr. Mohan, and Suhas ji. With this, I'll hand over the mic in this circle. So please pardon me if I have to intervene if we are overstepping on the time limits. So 7 minutes per person. So let me start with Adinarayan ji. नमस्ते, मेरा नाम आदिनारायणन है। हमारा आश्रम पैरणी के पास है, तमिलनाडु में। आज तैपूसम है, मुरुगन का बहुत विशेष दिन है। हमारा आश्रम के अंदर धर्म गुरुकुलम बोल के रेजिडेंशियल गुरुकुलम है, जहाँ 40 बच्चों के ऊपर पढ़ रहे हैं। उसके अलावा हमारा स्वधर्म गुरुकुलम बोल के नॉन रेजिडेंशियल गुरुकुलम्स भी हैं, और बाल गुरुकुलम बोल के 2.5 years to 5 years of age, ऐसे कुछ 10 गुरुकुल चलाते हैं। मोर देन 200 children receive free of cost education. The main theme being अभी के माध्यम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना बहुत आवश्यक पड़ता है, और उसके लिए गणित शास्त्र, आयुर्वेद योग शास्त्र, नक्षत्र विद्या और अन्य शास्त्र हम इंक्लूड करते हैं along with modern sciences. तो ये इंटीग्रेशन गिव्स ग्लोबल सोफिस्टिकेशन एंड ऑल्सो भारतीय कल्चरल रूटेडनेस। ये दोनों को जोड़ना हमारा विजन है। एंड दिस इन द रेजिडेंशियल गुरुकुलम, जो धर्मा गुरुकुलम बोलते हैं, उसमें दिनचर्या ऐसे होता है कि जैसे ताई जी बता रहे थे,
it includes certain principles of self-discipline, self-reliance, Atmanirbharta, and self-organizing capability. उसकी व्यवस्था दिनचर्या में होता है. So it is not just a timetable based education. This also comes from the understanding of complexity sciences. जब सिर्फ टाइम टेबल होता है तो लीनियर होता है, एक के बाद एक होता है, मगर अडेप्टेबिलिटी एंड रेसिलियंस, तो दो कॉन्सेप्ट्स हम लाते हैं. वन इज रेसिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी और दूसरा एंटी फ्रेजिलिटी. तो गुरुकुल में जो होता है वो फ्रेजाइल एनवायरनमेंट नहीं होता, जो वो समाज में जाके सभी के साथ मिलजुल के रहें और लीड करें, तो दे बिकम एंटी फ्रेजाइल. रेसिलियंस माने जब कुछ स्ट्रेस होता है, दे नीड टू पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड टू इट. उसके लिए जो व्यवस्था होना चाहिए वो हम देते हैं वो गुरुकुल शिक्षा में. These become important markers of the गुरुकुल पद्धति. और ये कैसे साध्य होता है? पहले वी एस्टैब्लिश अ रोल मॉडल थ्रू इंट्रोड्यूसिंग रामायण. श्री रामचंद्र प्रभु, भगवान श्री राम एक अच्छे रोल मॉडल के माध्यम में जब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तब ऑल दी चिल्ड्रन लुक अप टू द क्वालिटीज दैट भगवान श्री राम एम्बॉडीज, एंड इससे भारतीयता एस्टैब्लिश करते हैं कि भारतीय पद्धति जो है वो कैसे एडवांस्ड है. तो उसमें वी ब्रिंग इन मॉडर्न साइंसेस टू सपोर्ट भारतीयता. फॉर एग्जाम्पल काउ सेंट्रिक सस्टेनेबिलिटी, काउ सेंट्रिक एनर्जी, गो संरक्षण जो है वो कैसे साइंटिफिकली एडवांस्ड है, उसके लिए वी ब्रिंग इन माइक्रोबायोमिक्स, द साइंस ऑफ माइक्रोबायोमिक्स टू एस्टैब्लिश सस्टेनेबल हेल्थ. We bring in energy systems to contrast with petrochemicals. तो सस्टेनेबिलिटी, एंटी सस्टेनेबल जो है वो स्पेसिफिकली पेट्रोकेमिकल बेसिस है. तो वो गो आधारित होने से वी एस्टैब्लिश हाउ वी कैन प्रोग्रेस मेथोडिकली, जैसे अपने ऋषि परंपरा में, भारतीय परंपरा में एस्टैब्लिश हुआ है. सो वी कैन यूज मॉडर्न साइंसेस विच आर पैराडाइम एग्नोस्टिक, जैसे कि ओमिक्स हैं, न्यूरो साइंसेस, नैनो साइंसेस, ऑल ऑफ दीज आर पैराडाइम एग्नोस्टिक. माने वो सिर्फ वेस्टर्न साइंस के लिए काम नहीं करते, वेस्टर्न पैराडाइम के लिए काम नहीं करते, वो भारतीय पैराडाइम के लिए भी काम करते हैं. तो वी यूज सच मॉडर्निटीज टू एस्टैब्लिश भारतीयता, ताकि सबके मन में वो प्राइड रहे, भारतीय हैं. तो वो प्राइड रहना बहुत आवश्यक है इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. तब ये वोकिज्म भी खत्म होगा, क्योंकि वो जो है वो क्यों होता है? दैट इज जस्ट सोफिस्टिकेशन विदाउट कल्चरल रूटेडनेस. तो कल्चरल रूटेडनेस अगर हम गो आधारित व्यवस्था बोलते हैं तो उसको कैसे मानते हैं? वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, वो कल्चरली रूटेड है मगर सोफिस्टिकेटेड नहीं है. तो सोफिस्टिकेशन ऑफ नॉलेज एंड साइंटिफिक पैराडाइम्स ले आना बहुत आवश्यक है अपने व्यवस्था को सोफिस्टिकेटेड बताने के लिए. तो वो किस्म निकल जाता है. वैसे अर्थ साधन भी इससे बहुत आगे बढ़ सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज द नीड फॉर अर्थ साधन? वन इज EMI in terms of say monthly घर बसाना. Second is health. तो health, if we have Ayurveda yoga, तो health self reliant हो जाता है. Similarly construction technologies, गौ आधारित construction technologies introduce करते हैं, तो वो भी self reliant होता है. तो उनके मन में ऐसे लगता है कि सोफिस्टिकेटेड लाइफ जो है वो कल्चरली रूटेड भी हो सकता है. दे कैन प्रोग्रेस फ्रॉम अ सेल्फ रिलायंट बेसिस.
तो वो अर्थ साधन जो है उसका दृष्टि ही चेंज हो जाता है। धन्यवाद। Namaste. My name is Valish. I'm part of two organizations. One is Samvida, which is a community of parents and children who do not send out, where the children don't go to a formal school, a Gurukul. But it's more a community, as more or less like maybe a Vidya Kshetra, where there is no fees, but the model works on cost sharing, where parents share the cost. The primary purpose of a Samvida is to help children grow up in an environment where they acquire a civilizational identity, as we call it, where they deeply connect themselves, their identity, with Bharata. And the Jivana Drishti should be Bharatriya Drishti. This is the primary objective, where parents, children, everybody come together to create this kind of an environment where children grow up and learn as well. Eventually, because of their need to make a livelihood, children will go back to mainstream after grade 10. That has been our model. For someone who has been part of this, it takes a lot of effort from a lot of people, many families coming together to create this Manikya. But then I feel that we take the child or the Manikya to a Mela and lose it, because we eventually leave the child in the mainstream, hoping that someday, the child, whatever we have lost, we feel that we have lost in the interim, will be able to retain that identity and become somebody that we have dreamt of, and we will be part of the Bharatiya Sanatana movement, if we can call that. While the time that the child spends in the Gurukula is enjoyable, and we feel that the child is turning out of the way to acquire the Bharatiya Drishti, as I said, the later part has been a little disappointing, because we don't have control. We are swimming against the tide, because as IG mentioned, and it is the primary discussion today. I think there is a significant inability that we have had in trying to create a path where the child will be able to continue higher education and also take up a vritti, which is in the lines of where the child can, where the individual can follow Purushartha the way it is expected. So, to that extent, while we are happy with what is happening, the outcome is something that is still a big challenge. This is where discussion like this will be very important. The second part of the second organization that I am part of is called Prayoga. It is an education research organization, and we also do scientific research. We are trying to understand the impact of various aspects of teaching and learning, pedagogy, the content, everything, in the education space at an individual child level and at a societal level. We also do research in science where children are also involved. One of the projects that we are trying to do today is, diabetes is a major concern in the country. So metformin, the Western medicine is the only option available.
the project that we are trying to do is there are Ayurvedic medicines and treatment methods that are available. We're trying to see if we can establish a scientific validation of that, so that every doctor can prescribe, Ayurvedic treatment, etc., which is in one way expanding the possibility, the economic viability of becoming the Ayurvedic medicinal ecosystem, and there is a student who can continue to do that. So, unfortunately, all the parameters or the measuring metrics that are used are from the West. Today, even if our educational ideas are better, even if our scientific ideas are better, they have to be validated against the Western benchmark. In some ways, what we are trying to attempt is to see if we can use the Western benchmark to have a foot in the door, so that the Bharatiya ideas on education and science can be mainstreamed to the extent that is possible, so that we are able to expand the number of people who adopt it, the number of people who accept it, the number of people who become proponents of that in the days to come. So the idea of involving students in all these things is to also create that hope, create that possibility of a path that they can look forward to, than saying, oh, I have to eventually get this exam and get onto the mainstream. While there are a lot of possibilities that I see, the challenges are daunting, and this is where concerted efforts I think are very essential. And I'm glad that we are having such a discussion today. Thank you. Thank you. Namaste. This is Shiv Kumar. I'm from an organization called Indica. Indica is an institute for Indian knowledge systems, traditions, and culture, started by our founder Hari Vadlamani. In this, I had a center called Indica Kautilya Center for Governance, Policy and Leadership. So we're building programs, concepts, frameworks, briefs, pedagogical instruments that can influence, reshape policy and leadership and governance, which has always been our strength in the form of Rajadharma. So the topic that we are discussing today and the prastavana that Indutaiji has given, this is really the crux of the problem that we need to solve. I just want to take a step back and just analyze what actually is the nature of the crisis that we are facing today. The important part is 250 years back or 300 years back, the West has come up with a new model and knowledge framework to understand the universe, to produce knowledge and to produce material. The nature of this knowledge and the method is of a higher rajas. It is at once very highly attractive to the mind, due to which the paradigm of Srishti that was more sustainable that we were following, which not only got destroyed in the colonial period,
which appears to be weak in comparison to that. So our mind has been completely captured by a paradigm of knowledge and a paradigm of production and a paradigm of management, which operates more in the Manomaya Kosha and